নিট কাণ্ডে উত্তাল সংসদ। দুপুর 2টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ, কেন আন্দোলনকারীদের ওপর ছড়া গুলি চালানো হয়, এই প্রশ্ন তুলে সংসদে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি অত্যাচার, পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে মুলতবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। দুপুর 2টা পর্যন্ত মুলতবি লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। সংসদের সরব হয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন যে কেন আন্দোলনকারীদের ওপর ছড়াগুলি চালানো হলো। আজও ফের একবার উত্তাল হলো সংসদের 2 কক্ষ লোকসভা এবং রাজ্যসভায় দুপুর 2টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক কি হলো আজ রাজ্যসভা এবং লোকসভার 2 অধিবেশনের কক্ষে, আরো বিস্তারিত জানাবেন প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন। বিজেন্দ্র, দেখো, গতকাল যখন হাউস কোনো কাজ করেনি তারপর থেকে স্পিকার এবং সরকারের তরফ থেকে রিচ আউট করা হয়েছিল বিরোধীদের কাছে এবং একটা রফাসূত্র বেরোচ্ছিল কি আজকে হয়তো হাউস চলবে এবং একদিকে লোকসভায় যে পেপার লিক নিয়ে সংশোধনী বিল নিয়ে এসে সরকার সেটা নিয়ে ডিবেট করে পাস করিয়ে নেওয়া হবে এবং বন্দে মাতরমকে নিয়ে যে রাজ্যসভা বিল নিয়ে এসছে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়ে পাস হয়ে যাবে। 6 ঘন্টা অ্যালট করা হয়েছে ডিবেট এবং ডিসকাশনের জন্য। কিন্তু আজকেও সকালে যে বিরোধীরা মনোভাব নিয়েছিলেন, একদিকে তারা এখনো অনড় রয়েছেন কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে, যেভাবে প্যালেটগঞ্জ চালানো হয়েছিল, সোমবার যে ধর্ণা দিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরা তাদের ওপর যেভাবে লাঠিচার্জ হয়েছিল সেটা নিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। এবং অন্য ইস্যু এখন সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেস বিশেষ করে রেস করছে, সেটা হলো রাম মন্দিরে যে প্রণামী চুরি হয়েছে সেটা নিয়ে সরকার জবাব দিক। এই স্লোগান দিয়েই আজকে লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুটো অব্দি অ্যাডজার্ন হয়ে গেছে। তবে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে দুটো থেকে হয়তো দুটোই হাউসই চলবে এবং একদিকে পেপার লিক বিল লোকসভায় ডিবেট হবে, অন্যদিকে রাজ্যসভায় যে বন্দে মাতরম নিয়ে বিল নিয়ে এসেছেন সরকার সেটা নিয়ে আলোচনা হবে। ধন্যবাদ বিজেন্দ্র। যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি জানালেন, লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর 2টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়েছে। নিট কাণ্ডে আজও উত্তাল সংসদ। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ, কেন আন্দোলনকারীদের ওপর ছড়াগুলি চালানো হলো, এই প্রশ্ন তুলে সংসদে সরব হন বিরোধীরা। বিজেপিতে মিশে যাওয়ার জল্পনার মধ্যে এবার এনডিএর বৈঠকে এনসিপিআই সাংসদরা। এনডিএর বৈঠকে এনসিপিআই এর সাংসদরা উপস্থিত, যেখানে ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়, সায়নী ঘোষ, শর্মিলা সরকার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। এনডিএর বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সারিতে বসতে দেখা গেল কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। প্রধানমন্ত্রীর পিছনের সারিতে ছিলেন শতাব্দী রায়, অসিত মাল। দিল্লিতে এনডিএর মঙ্গল মিলন বৈঠকে এনসিপিআই সাংসদরা। यानी कैसा रहा आपका अनुभव, पहली बार इस बैठक में पहुंची हैं? बहुत ही अच्छा अनुभव है क्योंकि बहुत एनरिचिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, गृह मंत्री जी उपस्थित थे और इसके साथ साथ आज यहाँ पे एफटीए के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा हुई और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी चर्चा हुई। एज अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन आई रियली थिंक दैट इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इससे पहले विपक्ष में और आज जो है एनडीए का हिस्सा बन करके एक यू टर्न अलग सा अनुभव है, बट मुझे लगता है जो पॉलिटिकल जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी और ऐसे अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण। और जेनजी की बात लगातार हो रही है, इस पर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि अब तो जो सरकार जेनजी तो हमारे देश की धड़कन है, हमारे युवा, हमारे छात्र छात्री वो हमारा गर्व है और उनके लिए जितना भी किया जाए कम होगा। आज यहाँ पे बिल आने वाला है, उस पर आप सभी को पता है कि चर्चा होगी। 6 दिन के बाद पार्लियामेंट चलने वाला है होपफुली। सो वी आर रियली ग्लैड एंड आई थिंक स्टूडेंट्स हो, छात्र छात्री या युवा हो, उनको पॉलिटिकल आलोचना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि सरकार क्या रिफॉर्म्स ला रही है, वो जानना चाहते हैं कि आगे बढ़कर शिक्षा क्षेत्र के लिए उनकी क्या कार्य प्रणाली रहने वाली है। तो उस पे चर्चा हो, बिल पे चर्चा हो, जोरदार चर्चे हो, फीडबैक आए, इनपुट आए और उनका अमल किया जाए, बस यही सब। तो निश्चित तौर पर पहली बार बैठक में आते हुए शायनी घोष जो अपने अनुभव भी साझा कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि बिल पर चर्चा हो वो ज्यादा जरूरी है। এনডিএর বৈঠকের ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তারা সকলে যেমন উপস্থিত, আর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এনসিপিআই সাংসদরা। একেবারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সারিতে উপস্থিত ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এনসিপিআই এর অপর সাংসদরা যেমন শতাব্দী রায়, অসিত মাল, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ তারাও উপস্থিত ছিলেন এনডিএর ডাকা এই বৈঠকে। আর এই বৈঠকের পর রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানালেন দেখুন।
एनडीए का मंगल मिलन और सबके बीच में मेरे साथ मौजूद है रचना बनर्जी जो पहली बार इस बैठक में पहुंची है। मैम, कैसा रहा अनुभव आप लोगों का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत एक नया एक्सपीरियंस हुआ और सभी के साथ हम लोग बैठ के बहुत कुछ जानकारी भी हुई हम लोगों की। और आगे में हम लोग को ये पॉजिटिव फीलिंग बहुत आया कि आगे में हम लोग जो सांसद हैं, जो नए हम लोग एनडीए में ज्वाइन किए हैं, हम लोग के लिए काफी अच्छा काम करने के लिए रास्ता खुल गया है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो स्पीकर साहब ने अनुमति भी नहीं दी और आप लोग जो है देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, उनका बात सुनना नहीं है। हम लोग सपोर्टर है इंडिया की और आई नो, वी ऑल नो दैट वी गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम द एनडीए पार्टी। तो साफ तौर पर पहली बैठक में एनडीए की जो पहली बैठक में रचना बनर्जी पहुंची, जिन्होंने कहा कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ संदेश मिला है और बहुत अच्छा रहा अपना अनुभव बताते हुए। जब आपने केसीआर के एमएलएस को लेके मर्ज करा दिया था कांग्रेस के साथ और स्पीकर ने कोई निर्णय 2 साल नहीं दिया, कोर्ट जाना पड़ा केसीआर की पार्टी को, उस पर राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, जवाब दें। বিজেপি সাংসদ সুস্মিতা দেবের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। আর অন্যদিকে এনডিএর বৈঠক, যেখানে এনসিপিআই সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন। সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য যেমন আপনাদের শোনালাম, এবার শোনাবো শতাব্দী রায় কি বলেছেন। करना जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स में डिस्कशन हुआ। ये तो देखा नहीं कभी मैंने पहले, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रहा है। किन बारों में डिस्कशन हुआ? एक्सपोर्ट के बारे में, जीरो एक्सपोर्ट जो मतलब क्या बोलते हैं, टैक्स जीरो, हाँ, उसमें जो बात हो रहे थे, ये इतना टाइम ये करे, तो फिर वो, और जैसे फिशरीज का नया डिपार्टमेंट हुआ, उसका क्या बेनिफिट, क्या कर रहे हैं वो। और सेकेंडली जो बात पीयूष गोयल ने किया, उसका जो कौन सा देश से कितना एक्सपोर्ट का क्या क्या बात हो गया, सब कुछ वो बोल रहे हैं। के बारे में बताया कि जो बिल के बारे ये बिल के बारे में भी बताया और आगे भी क्या होगा, क्या क्या बिल आ रहे, ये सब बोल के बात की। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই বৈঠকে। অত্যন্ত সদর্থক একটি বৈঠক, যেখানে সকলের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত খুশি এনসিপিআই সাংসদরা এমনটাই বললেন। इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं, या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी बीजेपी सांसदों ने আর এরই মধ্যে আপনাদের জানিয়ে রাখি, নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জ আর তারই প্রতিবাদে লোকসভার অধিবেশন মুলতবি করে দেওয়া হলো দুপুর 2টো পর্যন্ত। অন্যদিকে এনডিএর বৈঠকের ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। এনসিপিআই সাংসদরা তারা যোগ দিয়েছিলেন এই বৈঠকে। आपका हो जाए तो फिर मैं बोलूं। आज तो मैंने पहली बार एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया और बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक मीटिंग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, गृह मंत्री जी थे, दूसरे माननीय मिनिस्टर्स भी थे। आज एफटीएस पे विस्तारित रूप से आलोचना की गई और उसके साथ ब्लू इकोनॉमी जो है हमारे देश में बढ़ती हुई एक इकोनॉमी, उस सेक्टर पे भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अच्छा लगा मुझे, सकारात्मक आलोचनाएं हुई। और आज तो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कल। हम चर्चा करेंगे आज, 6 दिन बाद संसद चलने वाला है। आप क्या सोचती है? जेनजी तो हमारे दिल की धड़कन है, देश के युवा, देश का छात्र, वो देश के गर्व है। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो आगे बढ़ के आए, मुद्दा उठाया पेपर लीक का, नीट का, इससे उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे देश में कि भारत में गणतंत्र जिंदा है और सरकार आगे बढ़ के आई। सरकार को भी ये बिल लाने का मौका मिला। आगे जाकर हम कोशिश करेंगे जो बिल में है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल में जो देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। जिसने भी जो भी ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का
हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया है, इसको सबको समर्थन करना चाहिए। ये जी हाँ, हमको अलग से आज हमारा मेंशन किया गया, क्योंकि आज हमारी पहली मीटिंग थी और हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने हम सबको इंक्लूड किया आज के मीटिंग में, और बहुत इन्फॉर्मेटिव एक प्लेटफॉर्म था, बहुत अच्छा लगा हम सबको। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखी।